آج آپ اسکول لیٹ کیوں آئے؟ ہاں آج تو مجھے لیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے اپنے بھائی کا داخلہ جیمس وندھاما میں کرنا ہے. اچھا کابینہ آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ جیمس وندھاما میں ایڈمیشن اوپن ہے. گورنمنٹ مڈل اسکول وندھاما enrollment drive. Admission is open now. Faculties are here. Come and see the difference. شہلا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہے یہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں؟ یہاں کے ٹیچرز تو سخت محنتی ہے. یہاں ہمیں یہ روز سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے, اٹھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. یہی تو ایجوکیشن کا معنی ہے. میون سکول وی اصل سن استاد دل سے پڑھنا. مجھے اپنے اسکول پر فخر ہے. میں جی ایمس ایسا اسکول میں نے کہیں پر نہیں دیکھا ہے. Yes, you know the way of teaching of our teachers, how they teach us, the way they treat us, their affection, their hard work, their dedication. I have no words to praise my teachers, and I have no doubt, I'm sure that there is not any institution that remains follow to ours. Government Middle School Wandhama Zul Tulmula is really doing nice. Government Middle School Wandhama is really nice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abdul Majid Bhatt, teacher at GMS Wandhama, Zul Tulmula. We are delighted to announce admission process for the session 2026. We are lucky to be here in GMS Wandhama under the supervision of Mr. Riyaz Ahmad Bhatt, because here the teachers are dedicated, intelligent, talented. The way they teach, the methodology they adopt is quite different from other schools, and I love my school. We get here each and everything we need, not only the education but also the moral education. Here students are trained morally. I love my school, I love my teachers, and I appreciate the Mr. Riyaz Ahmad Bhatt, who is the HOD at this school. He always gives us directions how to run this institution. I am thankful to Almighty Allah that I am here. क्लासेस थोड़ा मुझे तो खुशी की बात है, उससे तो ये अच्छी बात है. क्लास में रिसल्ट हुई है कुछ क्या ऐसे भी है नहीं, क्योंकि बच्चा क्यूरियस होता है कि एक तो मुझे नई क्लास में जाना है, और दूसरा मैं देखूंगा कि मैंने साल भर क्या किया, मेरी मेहनत रंग लाई है. ये वो चीज़. और बच्चों का रुझान बढ़िया है. आप भी देख रहे हो, हम सभी देख रहे हैं. बच्चे रुझान उनका जो है अच्छा है और दे आर फीलिंग गुड. इसका ये मतलब है कि टीचर्स पे भी इसका असर रहता है कि टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल. क्या इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू रियाज साहब. जहाँ तक आपने कहा कि टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है स्कूल में अगर कोई इम्पोर्टेंट पिलर है वो टीचर ही है, क्योंकि टीचर के इर्द गिर्द ही हर कोई चीज घूमती है. टीचर वहाँ पे मैन पिलर है. अगर टीचर सही होंगे, अगर टीचर की मेथोडोलॉजी पेडागोजी सही होंगे, अगर टीचर केयरिंग होंगे, अगर टीचर एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो मुझे लगता है कि उस स्कूल में सब कुछ है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उस स्कूल का रोल बढ़ जाएगा. You mean in nutshell we can say that teachers are pivotal role. Absolutely right. और एक चीज हमने देखा कि बच्चों में जो हमने बेसिक्स हम देते हैं, बेसिक्स जब हम क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर करने जा रहे हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हमें बेसिक ऑपरेशंस उसमें आने चाहिए बच्चे को. पहले आपको लग रहा है कि पहले बेसिक ऑपरेशंस से लिए जाए कि बच्चा पूरे अच्छे से समझ जाए. मुझे लगता है जहाँ तक टीचिंग प्रोफेशन अगर हम इसकी सही माने से बात करें, तो मुझे लगता है सबसे पहले एक टीचर के अंदर पेशेंस होनी चाहिए. कोई भी ऐसा टीचर ना हो जो जंप करे चीजों के ऊपर या स्किप करे, बल्कि एवरी टीचर शुड टेक इट्स ओन टाइम. हर बच्चे को वक्त की जरूरत होती है, वो उन्हें बिल्कुल वक्त दे बेसिक चीजों पर, बेसिक नॉलेज पे, ताकि उनकी फाउंडेशन सही हो और आगे जाकर जब वो हायर क्लासेस में जाए तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सके और
उनकी कॉन्सेप्ट्स करिए. आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, 8th इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं हाउ द टीचर्स How teachers learn. तो वहाँ एक बात में वहाँ एक अच्छी बात है कि give it plenty of time to the children, To the children. especially for the beginners, बिल्कुल सर. so that they can see the things, see the words, and they know the words exactly what they are, what they means. सही बात. Okay, yes, it's a good thing. And जहाँ तक एडमिशन की बात हम करते हैं, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि हम जेम्स वंधामा से बात कर रहे हैं, हमने यहाँ एक नया निज़ाम राज किया है पढ़ाने का. हम पहले बेसिक्स पर ही जाते हैं, और जहाँ तक हम मेरी जो टीचर्स हैं, खुसूसन अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, हमारा जो जोर रहता है सिट्रस, वी आर गिविंग सिट्रस ऑन द लैंग्वेजेस. क्योंकि वन थिंग मैं आपको फ्रैंकली बोल दूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हम तो पढ़ाते हैं, हर कोई टीचर पढ़ाता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट टीचर्स, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेल क्वालिफाइड. पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़रिया है एज माई सेल्फ इज कंसर्न, कि वो ये है कि बच्चे कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हैं, बच्चे कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि पेरेंट्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड. मगर जहाँ तक हमने अपनी स्कूल की एक रुचि, एक इसका ये हमने एक निज़ाम, हमें वी हैव चेंज्ड द सिस्टम. हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले से ही उनके पहले, अगर हमें अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट पढ़ाना हो, अगर हमें उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाना हो, फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम उनका पहले एक रिव्यू लेते हैं कि उनके पास क्या है, वो क्या जानते हैं, चाहे ग्रामर हो, चाहे बुक्स के रिलेटेड हो. तो ये सारी चीज़ें हम लेके साथ चलते हैं, और इंशाल्लाह हमने देखा है कि पेरेंट्स दे आर सेटिस्फाइड, उनका हम पे अबूर है. सबसे बढ़िया चीज़ मैं मानता हूँ, और टीचर्स भी ये मानते हैं, मुझे लगता है ये सही बात है कि सबसे बढ़िया यही चीज़ है. सबसे बड़ा रिवार्ड जो है वो ये है कि जब पेरेंट्स और बच्चे आप पे एतमाद करें, एतमाद दिखाएं. बाकी यही है कि हमारी जो एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, हम पेरेंट्स से यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को एनरोल कीजिए, एंड वो आप देखिए, एंड यू कैन कम एंड सी द डिफरेंस.